Hello everyone, we are starting with chapter 2, that is acid, bases and salts. So in this video we'll be covering some very important MCQ questions for term 1. तो start करते हैं question number 1 से. Let's start with question number 1. It says what happens when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube. So यहाँ पे उन्होंने बोला कि एसिड और बेस को अगर आप मिक्स करते हो तो क्या रिजल्ट मिलता है. तो एसिड और बेस को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है, राइट और यहाँ पे हमें पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होता है. तो देखते हैं कि ऑप्शंस कौन से हमारे सही हैं. तो यहाँ पे आपको दिया द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस. सो यस इट डू इंक्रीजेस बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सोथर्मिक, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कम अंडर द exothermic reaction. Exothermic means that it will release some amount of energy. Then the temperature of the solution decreases. This is incorrect. The temperature of the solution remains the same. नहीं, temperature हमारा increase होगा. Last में आपको दिया salt formation takes place. This is very correct. Now you can see कि first and fourth are correct. So D option is the correct one. Now moving to question number 2. Question 2 says that an aqueous solution turns red litmus solution blue. Excess addition of which of the following would reverse the change. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि रेड टू ब्लू हो रहा है. अब वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन ऐड करे इसमें कि ये चेंज हो जाए, ऑपोजिट हो जाए. तो फर्स्ट में हमें दिया हुआ है बेकिंग पाउडर, लाइम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, देन आपको दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो सबसे पहले तो ये सोचो कि रेड टू ब्लू होता कौन सा है. रेड टू ब्लू तब होगा ये हमारा जब हमारे पास क्या है, इट इज अ बेस. और अगर मेरे को ब्लू टू रेड चाहिए दैट मीन्स आई हैव टू ऐड एसिड इन इट. सो देयरफॉर addition of acid can help us in reversing the change, which is you can see is hydrochloric acid. First three are bases, so I have to consider acid because I want to change it in blue to red. So yes, D is the correct answer. Now moving to question number 3. Question number 3 says during the preparation of hydrogen chloride gas on a humid day, the gas is usually passed through the guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken the guard tube is 2. तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनानी होती है सो वी हैव टू ऐड कैल्शियम क्लोराइड टू इट. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये चैप्टर 6 में भी पूछा जाता है आपसे कि कैल्शियम क्लोराइड का क्या यूज़ होता है. कैल्शियम क्लोराइड बेसिकली बिहेव करता है इन एब्जॉर्बिंग द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस. कोई भी मॉइस्चर होगा आसपास उस गैस के, सो इट कैन एब्जॉर्ब दैट. सो यस, जो भी आपका मॉइस्चर होगा विद इन द गैस विच इज ऑप्शन सी कैन बी कंज्यूम्ड बाय कैल्शियम क्लोराइड. सो दैट्स व्हाई वी यूज दैट in the preparation of hydrogen chloride gas. Now moving to question number 4. Question number 4 says which of the following salts does not contain water of crystallization. So we have 4 options here, that is blue vitriol, baking soda, washing soda, gypsum. तो इसमें से अगर हम देखें ध्यान से तो baking soda is the one which is without water of crystallization. बाकी rest of them all appear in the state of water of crystallization. Water of crystallization का मतलब क्या होता है? It will have H2O in it. It will have H2O involved in it in their formula. So yes, blue vitriol does have water of crystallization, washing soda does have, then gypsum does have. So the only option we have is the baking soda. It doesn't have any water of crystallization. ये किस फॉर्म में होता है? सॉल्ट की फॉर्म में होता है, no crystals. So now moving to question number 5. Now question number 5 says sodium carbonate is a basic salt because it is a salt of strong acid and strong base. तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें. अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट बनता कैसे है. तो सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से, और वी नीड H2CO3 which is a carbonate. So you can see we'll get Na2CO3 plus water will be रिलीज. तो अब आपको बताना है ये सॉल्ट तो है उन्होंने बोला हमें, लेकिन हमें ये बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ एसिड यूज हो रहा है, कौन सा टाइप ऑफ बेस यूज हो रहा है. तो हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और H2CO3 विच इज अ कार्बोनिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड है. तो इसका मतलब we have this as a weak acid. That's why it is a basic acidic salt. So yes, I need strong base and I need weak acid to get sodium carbonate. And you can see option C is the correct one here.
sorry, no, not option C. It will be strong base and weak acid. That is option D. Weak acid भी है, strong base भी है. So yes, this is the case. Now moving to question number 6. Let's start with question number 6. So it says calcium phosphate is present in tooth enamel. Its nature is. तो आपको ध्यान रखना है जो calcium phosphate होता है, it is a basic salt. क्या है वो? एक salt है. इसका मतलब क्या हुआ? इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? बेसिक तो नहीं है, दूसरा एसिडिक भी नहीं है, तीसरा न्यूट्रल है. न्यूट्रल क्यों बोला मैंने? क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट वी हैव. सॉल्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यस इट विल बी न्यूट्रल इन नेचर, नॉट एम्फोटेरिक. ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि हमारा एसिड भी इसके साथ ऐड हो सकता है, बेस भी इसके साथ ऐड हो सकता है. So yes, in this case, remember that calcium phosphate is a basic salt and it is basically made up of phosphoric acid and calcium hydroxide. That's why it is a neutral salt or a basic salt. That's the answer for this one. And question number 7 now. So question number 7 says a sample of salt is mixed with water and allowed to settle. सॉइल को और वाटर को मिक्स किया है. द क्लियर सुपरनेट सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश टू ऑरेंज. नाउ इन दिस केस विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश टू ब्लू. तो आपको इसके लिए सारे के सारे आपको पता होने चाहिए कि कौन से कलर पे क्या मिलता है. ठीक है, तभी यू कैन आंसर दिस वन. जैसे अभी इन्होंने क्या बोला है, हमें चाहिए ग्रीनिश ब्लू. ग्रीनिश ब्लू कब मिल सकता है आपको? pH 8 पे. ये ध्यान रखना है आपने कि pH 8 पे हमें ग्रीनिश ब्लू मिलता है. कलर्स याद करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू 1 2 3 4. पता होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग क्या है. अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है? सबसे पहले तो सॉइल एंड वाटर इज देयर. अब उसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है? येलोइश ऑरेंज. लेकिन हमें येलोइश ऑरेंज से क्या करना है? वी हैव टू चेंज इट टू ग्रीनिश ब्लू. और ग्रीनिश ब्लू कैसे आएगा? वी हैव टू ऐड बेस टू इट, क्योंकि ग्रीनिश ब्लू एसिड हो रखा है अभी ये. दिस इज एसिडिक इन नेचर. ग्रीनिश ब्लू, सॉरी येलोइश ऑरेंज इज एसिडिक इन नेचर. अब हमें क्या चाहिए? ग्रीनिश ब्लू चाहिए. तो उसके लिए यू हैव टू ऐड बेस टू इट, क्योंकि हमें कौन से पे लेकर आना है? 8 पे. और 8 कैसा होता है? इट इज अ टाइप ऑफ बेसिक. सो यू हैव टू ऐड बेसिक सॉल्यूशन टू इट. लेमन जूस तो ऐड नहीं करेंगे, विनेगर भी ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज दीज टू आर एसिड. कॉमन सॉल्ट से भी कोई इफेक्ट नहीं होगा. एंटासिड यू कैन यूज बिकॉज इट इज वन ऑफ द base we have. So D option is the correct one. Now moving to question number 8. Question number 8 says which of the following gives the correct increasing order of acidic strength. मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखो किस आइटम का यूज हुआ है. वाटर है, एसिडिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. तो एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे कम तो वाटर होगा, क्योंकि वाटर एसिडिक नहीं होता, न्यूट्रल होता है. देन वी हैव एसिडिक एसिड इन इट. अब एसिडिक एसिड आता है आपका स्ट्रॉन्ग में तो आता है, मतलब ठीक ठीक होता है एसिडिक एसिड, ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग ना बहुत ज़्यादा वीक. देन वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है हमारा? इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ इट बिकॉज दिस इज अ इनऑर्गेनिक एसिड. और जो एसिडिक एसिड है इट इज़ ऑर्गेनिक, सो इट इज़ लेस एसिडिक. ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज ऑर्गेनिक, दैट्स व्हाई इट इज इन द सेंटर. और वाटर तो हमारा न्यूट्रल होता है, सो इसलिए सबसे पहले. सो यू कैन सी कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही था बिल्कुल. वाटर, देन एसिडिक एसिड, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 says if a few drops of a concentrated acid accidentally spills over the hand of a student, what should be done? तो मतलब वो कह रहे हैं कि अगर कंसनट्रेटेड एसिड आपके हाथ पे गिर जाता है तो आपको क्या करना चाहिए. सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन वॉश द हैंड विद प्लेंटी ऑफ वाटर. बहुत सारा पानी से आप क्या कर सकते हो? हाथ धो लो. और दूसरी चीज आप उसके ऊपर कुछ क्या लगाओगे? बेस लगाओगे, ताकि इफेक्ट उसका खत्म हो सके जल्दी से जल्दी. तो अगर आप देखो पहले से पहला वाला वॉश द हैंड विद सलाइन सॉल्यूशन, दिस इज वेरी इनकरेक्ट. सॉल्ट थोड़ी ना लगाएंगे उसके ऊपर, एसिड गिरा है तो एसिड का इफेक्ट खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? बेस चाहिए और पानी चाहिए. या तो वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. दैट दिस इज करेक्ट, क्योंकि हमें क्या करना है? वाटर डाल लो और वाटर से क्या होगा? वो हट जाएगा वहां से. और दूसरी चीज यू कैन अप्लाई पेस्ट ओवर इट. Then it says after washing the plenty of water, apply solution of sodium hydroxide on the hand. So this is incorrect. Washing नहीं करनी है हमें,
उसके बाद वो कह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा लो, नहीं, दिस विल बी इनकरेक्ट फॉर अस. डी इज न्यूट्रलाइज द सॉल्ट, neutralize the salt, then it says neutralize the acid with a strong alkali. This can be there, but उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे पानी से हाथ धोना पड़ेगा. ठीक है, तो B सबसे appropriate है यहाँ पे. Then moving on to question number 10 now. It says sodium hydrogen carbonate when added to acetic acid evolves a gas. Which of the following statements are true about the gas involved? यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एडिंग टू एसिडिक एसिड, जो कि है एसिड. एसिड में हम क्या ऐड कर रहे हैं, ये क्या है हमारा, दिस इज बेसिकली अ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इसका रिएक्शन बुक में सबसे पहले दिया हुआ है कि एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करते हैं. सो दे गिव अस सॉल्ट एंड दे गिव अस CO2 and one more thing is there which is water. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा. It says it turns lime water milky. So yes it can, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड है ना. So yes it can, this is correct. It extinguishes a burning splinter. So it can extinguish a burning splinter because of carbon dioxide. जैसे आग को हमें रोकना होता है तो we can use carbon dioxide for it. Yes, first and second is correct. Third one, it dissolves in a solution of sodium hydroxide. This is incorrect, नहीं हो सकता. Fourth, it has a pungent color. नहीं है, this is not true. So only first and second is correct, which is option number A. That's correct. Now moving to question number 11. Question number 11 says, common salt beside being used in kitchen can also be used as a raw material for making. देखो कॉमन सॉल्ट किचन में तो यूज़ होता ही होता है, लेकिन कॉमन सॉल्ट के और भी ज़्यादा यूजेस हैं एज अ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल से हम क्या करते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं. तो जो कॉमन सॉल्ट होता है वो यूज़फुल होता है हमारा वॉशिंग सोडा बनाने में और दूसरा बेकिंग सोडा बनाने में. ये बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है तो यू शुड नो कि वॉशिंग सोडा भी बन सकता है और बेकिंग सोडा भी बन सकता है विद द हेल्प ऑफ कॉमन सॉल्ट. सो यू कैन सी कि फर्स्ट और थर्ड हमारे करेक्ट है और इसमें से अब आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही होगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12 says one of the constituents of a baking powder is sodium hydrogen carbonate. The other constituent is. तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो चाहिए ये, और कौन सा एलिमेंट ऐसा चाहिए जिससे कि हम क्या बना सके, बेकिंग पाउडर. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई यूज नहीं है इसमें. Tartaric acid, yes, this is used for making of the baking powder. Sodium hydrogen carbonate or tartaric acid is used in the making of the baking powder so that it can produce carbon dioxide as the reaction and helps us in the baking as well. So yes, B is the correct option here. Now moving to question number 13. So question number 13 says, to protect tooth decay, we are advised to brush our teeth regularly. The nature of the toothpaste commonly used is. तो देखो ब्रश करते हैं हम, क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में क्या होता है, एसिडिक करेक्टर या एसिडिक नेचर बन जाता है. और अगर हमें एसिडिक इफेक्ट को ख़त्म करना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, बेसिक एलिमेंट को यूज़ करना पड़ेगा सो दैट वी कैन न्यूट्रलाइज द माउथ. सो यस, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सॉरी, not B, it is C is the correct option क्योंकि बेस हमें ऐड करना पड़ेगा so that we can have a neutral mouth. So yes, C is correct. Now moving to question number 14. Question number 14 says, which of the following statement is correct about an aqueous solution of an acid and base? So यहाँ पे first statement क्या दी हुई है, higher the pH, stronger the acid. This is incorrect क्योंकि वो क्या बन जाएगा, basic और कम acidic. Higher the pH, weaker the acid. Yes, this is correct क्योंकि जितना ज़्यादा pH ज़्यादा होगा वो बेसिक बनता जाएगा और एसिड वीक होता जाएगा. Lower the pH, stronger the base. अगर कम pH है तो stronger base होगा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एसिडिक हो जाता है वो तो. Lower the pH, weaker the base. Yes, this is correct कि अगर pH कम होगा तो इसका मतलब वो कैसा होगा, it will be weaker base. So yes, this is correct. D option is correct. मतलब फोर्थ पार्ट इज करेक्ट, सेकंड पार्ट इज करेक्ट, इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस MCQ सीरीज. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से.
Question number 15 says pH of the gastric juices released during digestion is. तो हमारे जो juices होते हैं they are basically acidic in nature, बहुत ज़्यादा acidic होते हैं. तो acidic है, gastric है, तो इसका मतलब it must be less than 7, बिकॉज मोर देन 7 तो हो नहीं सकते, वो तो बेस हो जाएगा. फिर इक्वल टू 7 भी नहीं हो सकते, इसका मतलब न्यूट्रल. 0 भी नहीं हो सकते, 0 होगा तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे. नहीं, इट इज़ लेस देन 7, और यूजली अगर मैं आपको बताऊँ इट इज़ 3 के आसपास होते हैं. सो येस, दिस इज द इंफॉर्मेशन आई हैव टू गिव यू. And yes, this is the last question of the MCQ based series. And yes, thank you for watching this video. Have a great day, and yes, like, share and subscribe to this channel. Thank you.